Hey guys, my name is Mahudians and my enrollment number is 72. I'm from group 11 and I would like to present you call the function in JavaScript on the CI based on the full stack web development using one technology. In JavaScript, call per function is a function that is passed as an argument to another function and it execute after some operation has been completed. This allows to control sequence of the code in execution one by one. Each of the methods can be executed after the completion of the callback function. The key point we are gonna discuss about the callback functions are definitions, execution types, and use cases. As a use cases and executions are depends on map and filter commands and methods. Types of callbacks are first is a synchronous and the second is asynchronous callback. Using anonymous function as a callback, we can use to define the callback function in separate ways. Uh, Depend on the types we are using in. The it will reflect the simplicity of the function which are based on the method you are using on. A callback function is a function that is pass an argument to another function. The outer function execute the first time. जो outer function होता है वो पहले execute होता है and the inner layer will be the next one who will be get the execution next. The callback are heavily used in JavaScript, especially because of the asynchronous nature. In the code, we mostly use asynchronous nature, and the codes are a very complicated and wide range of varieties we are providing. But the we want the execution immediately, not the sufficient way. So we are using array prototype, map function, methods, and etc. and etc. to fetching our data. Maybe we will use the set timeout functions and stuff like that. Passing a function as argument, a function can be passed as an argument because in JavaScript, functions are first class objects, meaning they can be assigned variables, passed as an argument, and returned to other functions. The argument हम return कर सकते हैं as functions in the behalf of the method we are using, whether it's type of asynchronous or it is asynchronous form. अब हम कॉलबैक्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे जिसमें एडवांटेजेस में सबसे पहला है कि फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर हम कॉलबैक को फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट कि जैसे कि हम आर्ग्यूमेंट जैसे हम फंक्शन बना रहे हैं तभी उसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट देते हैं तो उसमें उसके अंदर हम कॉलबैक यूज कर सकते हैं और दूसरा है कि सेपरेशन ऑफ कॉन्करेंस द आउटर फंक्शंस कैन फोकस ऑन इट्स कोर फंक्शनलिटी वेल द कॉलबैक हैंडल स्पेसिफिक एक्शन की कोई जो फंक्शन है वो तो रन होगा ही उसके उसके साथ ही साथ जो कॉलबैक फंक्शन है वो भी एक उसके साथ ही रन होगा जो वो कोई अलग से कोई टाइम नहीं लेगा और तीसरा है कि असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कॉलबैक अलाउ यू टू मैनेज टास्क लाइक एपीआई कॉल्स फाइल रीडिंग और टाइमर्स की कॉलबैक को यूज करते वक्त हम कोई एपीआई कॉल कराने कोई फाइल रीड करवाने की कोई अदर कोई टास्क परफॉर्म करवाने वो हम कॉलबैक की अंदर हम कर सकते हैं डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज का पहला है कि कॉल बैक हेल्प जैसे कि हम कॉल बैक यूज कर रहे हैं फंक्शन की तरह और वो सब हमारे एडवांटेजेस है उसकी तरह कुछ डिसएडवांटेजेस भी है when callback are nested deeply the code become hard to read or maintain जैसे कि हम एक से ज़्यादा बार हम कॉलबैक को यूज़ कर रहे हैं एस नेस्टेडली डीपली यूज़ कर रहे हैं तभी उसको हम उस कोड को हमें समझने में और अंडरस्टैंडिंग में हमको इतनी दिक्कत आएगी वो इजीली कोई दूसरा कोई प्रोग्रामर है वो समझ नहीं पाएगा और दूसरा है कि एरर हैंडलिंग जब हम एक से ज़्यादा बार कॉल यूज़ करें नेस्टेडली कॉल को यूज़ करके एक कॉल बैक के अंदर दूसरा कॉल बैक उसके अंदर दूसरा कॉल बैक जब भी कॉल बैक के उसी टाइम कोई कोई एरर आती है तभी हम उसको ढूंढने के लिए दिक्कत आएगी जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल पे हम देख पा रहे हैं कि पहले असीन टास्क वन है उसके असीन टास्क टू टास्क थ्री टास्क फोर और उसके अंदर कंसोल डॉट लॉग दिया हुआ है कभी यहाँ पे तो कुछ नहीं है पर जैसे कि हम जैसे मान लेते हैं कि कोई हमने
टास्क में अलग अलग पर्टिकुलर कोई एक्शन परफॉर्म करवाया है तभी उसमें दिक्कत आएगी। तब हमें हर एक टास्क को एक 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 बार के बाद एक के बाद ये हमको देखना पड़ेगा कि किसमें एरर है। और ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। Our next topic is how callback works. So first one is passing a function as an argument. So हम फंक्शन को आर्ग्यूमेंट के रूप में पास कर सकते हैं क्योंकि फंक्शन जावास्क्रिप्ट में एक फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये है कि हम फंक्शन को किसी भी वेरिएबल के अंदर असाइन कर सकते हैं, किसी दूसरे फंक्शन के में पैरामीटर के रूप में पास कर सकते हैं, या फिर किसी दूसरे फंक्शन के अंदर हम फंक्शन को रिटर्न भी कर सकते हैं। उसके लिए एक एग्जांपल दिया गया एग्जीक्यूट कॉलबैक नाम का फंक्शन है जिसके अंदर कॉलबैक को पास किया गया है, जिसके अंदर console.log में फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर कॉलबैक मैसेज दिया गया है, फिर कॉलबैक को कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे हम कॉलबैक मतलब कॉलबैक फंक्शन को इन्वोक कर रहे हैं, फिर उसके बाद console.log करके आफ्टर कॉलबैक किया गया है, और उसके नीचे एग्जीक्यूट कॉलबैक को कॉल कर रहे हैं जिसके अंदर हम एनोनिमस फंक्शन बना रहे हैं जिसके अंदर जिसकी बॉडी में console.log करके इनसाइड द कॉलबैक नाम का मैसेज दिया गया है। इसका आउटपुट कुछ यूँ निकल के आएगा, बिफोर कॉलबैक, इनसाइड द कॉलबैक एंड आफ्टर द कॉलबैक। दूसरा है इन्वोकिंग द कॉलबैक। इन्वोकिंग द कॉलबैक हमारा आउटर फंक्शन डिसाइड करता है कि कॉलबैक को कब इन्वोक करना है या फिर कॉल करना है, और कभी कभी वो उसके अंदर डेटा भी पास करता है। उसके लिए एग्जांपल में एक फेच डेटा नाम का फंक्शन बनाया गया है जिसके अंदर पैरामीटर में कॉलबैक को पास किया गया है। उसके अंदर सेट टाइम आउट मेथड में कॉन्स्ट डेटा नाम का वेरिएबल ऑब्जेक्ट असाइन किया गया है। उसके अंदर id इक्वल टू 1, नेम इक्वल टू अलाइस है। उसके बाद कॉलबैक में डेटा को पास कर रहे हैं और उसको 1000 मिलीसेकंड सेट की गई है। फिर फैच डेटा को कॉल कर रहे हैं जिसके अंदर पैरामीटर डेटा ले रहे हैं और उसमें console.log करके डेटा रिसीव्ड और डेटा की वैल्यू को पास कर रहे हैं जिसका आउटपुट की कुछ यूँ निकल के आएगा, डेटा रिसीव्ड id 1, नेम अलाइस। थैंक यू। अब यहाँ पे ओके गाइस, अब हम देखेंगे इम्प्रूव्ड कॉल बैक के हैंडलिंग यूजिंग नेम फंक्शन। यू कैन यूज अ नेम फंक्शन इंस्टेड ऑफ इनिशियल अनदर फंक्शन टू इम्प्रूव योर रिलायबिलिटी। ये लाइन हमको ये कहना चाहती है कि हम एज अ कॉल बैक फंक्शन एज अ कॉल बैक हम एज अ फंक्शन में एज अ पैरामीटर एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं और एज अ उसको फंक्शन में कहीं पे कॉल कर सकते हैं। फंक्शन यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल क्या तो समझिए, यहाँ पे फंक्शन डॉट टास्क में हमने कॉल बैक नाम का दिया है जिसमें सेट टाइम आउट में console.log में हमने एक मैसेज प्रिंट किया और कॉल बैक फंक्शन जो पैरामीटर में पास किया उसको कॉल किया। यहाँ पे टास्क टू नाम का फंक्शन बना है जिसमें एक console.log में एक मैसेज पास करा है, और नीचे हमने टास्क वन में टास्क टू एज अ फंक्शन एज अ पैरामीटर पास किया है जो विद इन अ टास्क वन में इनर में लेटर ऑन कॉल होगा। यूजिंग promises provide a better alternative to callback function to handling asynchronous operation। प्रोमिस हमको असिंक्रोनस ऑपरेशन के असिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडलिंग करने में बहुत पावरफुल होता है और हमको बहुत काम लायक होता है। लाइक कोई भी डेटा और हैंडलिंग के लिए हमको बहुत पावरफुल प्रोमिस यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के देखते हैं, फंक्शन डॉट फैच डेटा नाम का हमने फंक्शन बनाया जिसमें रिजल्ट रिटर्न में हमने न्यू प्रोमिस पास किया। ये प्रोमिस में हमें कंसोल डॉट कॉन्स्ट डॉट डेटा में एक जेसन डेटा पास किया है, अगर ये और उसको एक रिजल्व के थ्रू हमने वो डेटा रिटर्न करा दिया है, और हमने लेटर ऑन उसको फेच डेटा में डॉट धैन करके डेटा अगर सही हुआ तो डेटा डॉट कंसोल डॉट लॉग में उसको हमने प्रिंट करा दिया। अगर कोई एरर आए तो हम डॉट कैच के थ्रू उसको एरर हैंडल कर रहे हैं। नाउ अब हम देखेंगे, हमने टास्क एनीवे देखेंगे। कॉलबैक आर फंडामेंटल to concept in JavaScript and are essentially to handle the asynchronous tasking। callback function हम एज अ पावरफुल फंक्शन इस जेसन में है क्योंकि हम इसको एज अ फंक्शन एज अ पैरामीटर पास करते हैं जो हमारे कोड के रीराइटिंग को रीराइटिंग हमारे कोड को रिड्यूस करता है और हमारे टाइमिंग और टाइम कंज्यूमिंग और अंडरस्टैंडेबल कोड हमको लिखने के लिए यूज होता है। अब हम कंक्लूजन पे जाएंगे। हमने हमने ये पूरे वीडियो में हमने
हम ये पूरे वीडियो में हमने कॉल बैक फंक्शन के डेफिनेशन देखी, टाइप्स देखे और टाइप्स देखे, हाउ टू कॉल बैक फंक्शन कॉल देखा और उसके डिफरेंट यूज केसेस देखे, असिंक प्रोमिसेस के थ्रू और ट्राई कैच के थ्रू। थैंक यू।